Good, good morning, dear students. I hope you all are fit and fine. Today's topic is decimals. This is your chapter 4 in your book. So, what are the decimals, class? Decimals are the fractions with denominators 10 or powers of 10. Powers of 10 means 10 की power 2, 10 की power 3, 10 की power 4 means 100, 1000, 10,000 and so on. You can look at the example. Suppose if I write a decimal number 0.7. So the fraction of this decimal number is 7 by 10. So what does this mean? This means 7/10 means 7 out of 10. So decimals are the fractions. Means decimals are like the fractions. The meaning of decimal and fraction is almost same. Just the method of writing is different. We write the fractions in the form of numerator and denominator while we express the decimals by the decimal point. And when we write a decimal number, suppose I am writing 0.7, this means 7 by 10 means 7 out of 10. If I have written 0.37, this indicates 37 out of 100 means 37 hundredth part. 100 में से 37. So decimal and fractions are, you can convert any fraction into decimal and decimal into fraction. The exact method of converting I will tell you later. Right, class? Now, decimal number consists of two parts. देखिए class, same as in fraction also consists of two parts. The mixed fraction, there is a whole number in the, suppose if I write class 5 whole 2 by 7. So this we said this as a whole part and this is the fraction part in the fraction. Same way, any decimal number consists of two parts. The first is the whole part and the decimal part. Means decimal point में, look at the example 352.678. तो डेसिमल पॉइंट हम रिप्रेजेंट करते हैं एक पॉइंट से, और डेसिमल पॉइंट से जो लेफ्ट में आपका जितना भी नंबर है दैट वाज द होल पार्ट, वो आपका होल पार्ट है, मींस पूरा नंबर है. और डेसिमल के जो बाद का जो आपके जो डिजिट्स लिखे हुए हैं 6, 7, 8, ये क्या है आपका डेसिमल पार्ट है. तो डेसिमल पॉइंट के बाद आपका नंबर है 6, 7, 8. तो ये क्या रिप्रेजेंट करता है? ये रिप्रेजेंट करता है 678 आउट ऑफ 1000. तो ये आपका डेसिमल पार्ट या फ्रैक्शनल पार्ट है जो डेसिमल पॉइंट के राइट साइड में लिखा जाता है. तो इसी को मेन, यही हमारा जो है मेन है डेसिमल नंबर है क्लास. ये आपका होल पार्ट है. मीन्स अगर आप इफ आई हैव रिटन क्लास 352.678 या लुक एट द सिंपल एग्जांपल 3.7, तो ये कितनी वैल्यू है क्लास? 3 होल और 7 by 10th पार्ट. मीन्स 3 से ज्यादा है ये वैल्यू और 4 से ये वैल्यू कम है. राइट? नाउ लुक एट द प्लेस वैल्यू चार्ट कि आपका जो डेसिमल नंबर में 6 है, 7 है, 8 है, इनकी प्लेस वैल्यू कितनी है? ये जिस प्लेस पे है तो उसके इनकी वैल्यू कितनी है? सो द नंबर इज 352.678. तो डेसिमल पॉइंट तो डेसिमल है. लेकिन क्लास दिस इज द होल नंबर. आई टोल्ड यू ना, दिस इज द होल नंबर. तो होल नंबर्स का प्लेस वैल्यू चार्ट तो आप जानते ही हैं, 1 से स्टार्ट होता है. तो 1s, 10s और 100s. और जब इसको हम एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखते हैं या जब आपको प्लेस वैल्यू निकालनी होती है तो इस नंबर को आप मल्टीप्लाई करते हैं इसकी प्लेस वैल्यू से, इसको मल्टीप्लाई करते हैं इसकी प्लेस वैल्यू से जो कि 10 है, और यहाँ के नंबर को आप मल्टीप्लाई करते हैं इसकी प्लेस वैल्यू से जो 100 है. यहाँ पर जो आपका ये लेकिन डेसिमल पॉइंट के बाद का क्लास आपको ध्यान रखना है, 1 से स्टार्ट नहीं होगा क्योंकि फ्रैक्शनल पार्ट है. तो डिनोमिनेटर में 10 और 10 के मल्टीपल्स आते हैं. तो ये 1/10 है, 10th पार्ट. तो ये जो है आपका इसकी वैल्यू है 6 into 1/10 मीन 6/10. ये है आपका 100th. इसके बाद में th और ऐड किया गया 100th. ये डिनोमिनेटर को रिप्रेजेंट कर रहा है. 1000th पार्ट. तो ये यहाँ से आपका डेसिमल या फ्रैक्शनल पार्ट हुआ. तो 6/10, 7/100
8/1000 क्लास. तो this is the standard form, decimal form, and this is the expanded form. 300 plus 50 plus 2 plus 6/10 plus 7/100 plus 8/1000. Now class, how you will read a decimal number? See, this is 352 as we read the whole number. But after the decimal point, we always read as the individual digits after the decimal point, like 6, 7, 8. Now, a question arises, why we will read after the decimal point like this? Class, this is we cannot say this as 678. Yes class, why we cannot say it as 678? Because I told you this is the fractional part or the decimal part, and as we all know, the fraction is a part of a whole thing, means the value of this is less than 1, right class? Now if we read as 678, this is much more than 1. So to avoid the confusion or to represent the decimal part, we read them individual, 6, 7, 8, right? Because the value of this part is less than 1. This is the fractional part, the decimal part. So the value of this after the decimal point is always less than 1. One more reason is also there that I told you after some time class. Why we are not read as full? Why we read them separately 6, 7, 8? There is one more reason that I told you just now. Wait for some time. Now look at the decimal places. So if there is any number, so what are the decimal places? Any decimal number, count the number of digits after the decimal point. So the number of digits after the decimal point is called the decimal places. कोई भी नंबर है क्लास, जैसे आपका ये नंबर है 37.1, तो डेसिमल पॉइंट के बाद कितने डिजिट्स हैं? ओनली 1 डिजिट इज देयर. So this number is said to be the 1 decimal place. इसकी decimal place कितनी है? केवल 1 place तक है. 2.92. अब यहाँ पे 1 और ये 2 डेसिमल पॉइंट के बाद यहाँ 2 डिजिट्स हैं, तो इसकी डेसिमल प्लेस वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2. ये 2 डेसिमल प्लेसेस तक का नंबर है. सेम वे 36.916. तो डेसिमल पॉइंट के पहले से हमें कोई मतलब नहीं है, होल पार्ट से मतलब नहीं है क्लास. जो डेसिमल का नंबर है 916, यानी कि ये 3 डिजिट्स हैं, तो ये आपका 3 डेसिमल प्लेसेस का नंबर कहलाएगा. वन वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक इन द डेसिमल इज लाइक डेसिमल्स. आपके पास बहुत सारे नंबर्स लिखे हुए हैं क्लास. अब आप उसमें से कैसे फाइंड आउट करेंगे कि कौन कौन से डेसिमल्स जो है वो आपके लाइक हैं? तो बहुत ही सिंपल रूल है क्लास. सेम नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस मीन्स अगर आपके नंबर ऑफ डिजिट्स डेसिमल प्लेसेस के बाद जिन नंबर जितने सेम हैं वो क्या कहलाएंगे? लाइक. जैसे 37.1, 2.6, 392.7, इन सबके बाद कितने डेसिमल प्लेसेस तक हमने ये नंबर लिखे हुए हैं? 1, 1, 1. इनका डेसिमल प्लेस क्या है? 1. तो ये सभी नंबर्स आपके क्या कहलाएंगे क्लास? लाइक डेसिमल्स. होल नंबर बिग है स्मॉल है इससे कोई मतलब नहीं है, सिर्फ डेसिमल पॉइंट के बाद कितने डिजिट्स हैं, अगर वो डिजिट्स का नंबर सेम है तो ऐसे नंबर्स आपके क्या कहलाएंगे? लाइक डेसिमल्स. लुक एट वन मोर एग्जाम्पल. 2.36, 3.67, 23.92, 8162.05. नाउ लुक एट दिस एग्जाम्पल क्लास. यहाँ पे डेसिमल पॉइंट के बाद कितने डिजिट्स हैं? 2, 2, 2 एंड 2. ये सारे ही नंबर्स आपके 2 डेसिमल प्लेसेस तक जो है वो लिखे हुए हैं, तो ये सारे नंबर्स भी आपके क्लास क्या कहलाएंगे? लाइक डेसिमल्स. गेट इट क्लास? सेम वे आप 3 डेसिमल प्लेसेस तक के भी लाइक नंबर्स को फाइंड आउट कर सकते हैं और डिफरेंट नंबर्स को भी फाइंड आउट कर सकते हैं. बहुत ही एक चीज बताना चाहती हूँ क्लास आपको. ऐसे नंबर्स को डेसिमल प्लेस क्यों कहते हैं क्लास? देखिए, जब आप इनको क्लास फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो सबका डिनोमिनेटर यहाँ क्या आएगा? 10, 10, 10. इन सभी डेसिमल नंबर्स का डिनोमिनेटर क्या होगा? 10. और आप जानते हैं लाइक फ्रैक्शंस किसको बोलते हैं? द
the fractions are said to be like if their denominators are same. तो देखिए जब आप इनको कन्वर्ट करेंगे फ्रैक्शन में तो सबका डिनोमिनेटर क्या आएगा, सेम. सेम में जब आप सेकंड एग्जांपल में जब आप ये देखेंगे 2 प्लेसेस तक हैं तो इस नंबर का इसका इन सबका डिनोमिनेटर कितना आएगा, 100. तो ये लाइक फ्रैक्शंस में कन्वर्ट हो जाएंगे, इसीलिए ये जो है आपके लाइक डेसिमल्स कहलाएंगे. तो लाइक और अनलाइक डेसिमल्स में केवल आपको डेसिमल प्लेसेस को काउंट करना है. अगर डेसिमल पॉइंट के बाद की जो नंबर ऑफ डिजिट्स हैं वो सेम है तो वो सभी नंबर्स आपके लाइक हो जाएंगे. और अगर डिफरेंट डेसिमल प्लेसेस तक के नंबर्स हैं तो वो आपके क्या कहलाएंगे, अनलाइक डेसिमल्स. एग्जाम्पल है क्लास, जैसे मैंने लिखा 3.7 एंड मैंने दूसरा नंबर दिया 23.74 सपोज. Now this is up to 1 decimal place and this is up to 2 decimal places. So these 2 decimal numbers are said to be unlike decimal numbers. One more example, 2.14 and 36.024. Now see class, how many decimal places are there? 2 and here are 3. So these 2 decimal numbers are said to be unlike decimal numbers. अगर क्लास में इन 4 में से बात करूं तो कौन से 2 नंबर्स लाइक हैं, तो दिस एंड दिस कैन सेड टू बी लाइक बिकॉज इसकी भी प्लेस वैल्यू 2 है और इसकी भी प्लेस वैल्यू 2 है. अब क्लास एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी मैं आपको और बताना चाहूंगी इसी के साथ में. देखिए क्लास, आपका कोई भी डेसिमल नंबर है 2.7, राइट. तो आपने इसको कन्वर्ट करेंगे तो 27/10. इसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या है क्लास, मल्टीप्लाई आप 10 करें तो वो आपका क्या हो जाएगा 2.70. यानी कि क्लास 2.7 इज इक्वल्स टू 2.70 इज सेम है. अगर आप इसका लाइक फ्रैक्शन लिखें तो आपका एक 0 और बढ़ जाएगा तो आपका नंबर क्या आ जाएगा, डेसिमल नंबर. तो ये क्या पता चल रहा है कि ये जो सभी आपके नंबर्स हैं ये क्या हैं आपके क्लास लाइक. इनकी जो वैल्यू है ये लाइक नहीं है बट इनकी जो वैल्यू है, देखिए क्लास मुझे फिर से समझाने दीजिए. 2.7 नंबर है, इसको आपने फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया 27/10. 27 का इक्विवेलेंट नंबर क्या होगा 270/100. इस और ये भी आपका ही, तो आप मल्टीप्लाई बाई 10 करते जाएंगे और आपको इक्विवेलेंट नंबर्स मिलते जाएंगे. अब तो ये आपके ये सारे इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस हैं, यानी कि इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस मींस इनकी वैल्यू सेम है. अब इनको आप जब डेसिमल में कन्वर्ट कर रहे हैं तो ये तो 2.7 है, ये आपका ये फर्स्ट वाला इज 2.7. The next is this is 2.70 and this last is 2.700. Means these decimal numbers are not like. ये like नहीं है, these are unlike. But the value of these all are same. इनकी जो value है वो same है. तो यहाँ से हमें एक important property क्या मिलती है, we can increase any number of zeros at the end of the decimal number. मीन्स अगर कहीं पर भी हमें डेसिमल पॉइंट के बाद नंबर जीरोस की जरूरत है तो हम उस वहां पर बढ़ा सकते हैं, अपनी साइड से लगा सकते हैं जितने भी जीरो हम चाहें, उससे वैल्यू चेंज नहीं होती है. आपको अगर क्लास ध्यान हो, जब हम डिवाइड करते हैं तो डिवाइड के केस में जब पूरा क्वेश्चन डिवाइड नहीं होता है तो हम डेसिमल पॉइंट लगा के 0 लगा देते हैं. क्यों? क्योंकि डेसिमल पॉइंट के बाद 0 लगाने से उसकी वैल्यू चेंज नहीं होती है. इन सबका मतलब क्या है, 2.7 ही है क्लास, राइट. तो डेसिमल नंबर के लास्ट के जीरोस की वैल्यू मीनिंग नहीं होता है. तो देखिए क्लास, अब मैंने आपको बताया कि आप कितने भी डिजायर्ड नंबर ऑफ जीरोस को इंक्रीज कर सकते हैं. तो अब आपके ये जो नंबर्स हैं वो आपके अनलाइक हैं और आपको इनको लाइक बनाना है. तो लाइक करने के लिए आपको क्या चाहिए कि डेसिमल पॉइंट के बाद सेम नंबर ऑफ डिजिट्स हो जाए. तो देखिए यहाँ पर 2 है, यहाँ पर आपने एक 0 इंक्रीज कर लिया तो ये अब क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे भी 2 प्लेसेस हैं, यहाँ भी 2 है, तो अब ये आपके क्या हो गए, लाइक डेसिमल नंबर्स. सेम में इनको आपको लाइक करना है, आपने एक 0 यहाँ इंक्रीज कर दिया. तो इस तरीके से बाय इंक्रीजिंग द डिजायर्ड नंबर ऑफ जीरोस
we will convert the unlike decimals into like decimals. Get it, class? I hope you understood this, class. Yes or no? Yes? Okay, class. That is all for today. Rest we will do tomorrow. Thank you.